Yes, good morning all. Beta, today we will fill map major grasslands of the prairie of the world. Okay. Now you please, first of all, you write down this way. Okay. Write down this way major grasslands of the world. Write down the topic. Please write down the topic on the top. Write down the topic major grasslands of the world. Done? Is this done? Major grasslands of the world. See my cursor. Write down the topic. Now please look at the screen. Look at the screen first of all. I am going to tell you the place of prairies. This is number 1. Come to the North America, beta. आपको कहाँ ये fill करना है? Look at here. आपको this is a small water body. ये एनिमल टाइप एक बना हुआ है, ठीक है, और इधर भी छोटी छोटी सी आइलैंड से ये वाटर बॉडीज है, बिल्कुल छोटी छोटी. इन दोनों के इन बिटवीन यू पुट डॉट. अदरवाइज तो पूरा एरिया ही प्रेरीज है, बट हमने पूरा एरिया नहीं दिखाना, हमने सिर्फ ये बताना है कि दिस प्लेस इज अंडर प्रेरीज. ओके, आपकी बुक में तो बहुत बड़ा एरिया उन्होंने लिया हुआ है ग्रीन कलर में, but we will show through points. This area comes under prairies. Please check the spelling of prairies, because when I checked your notebook, maximum student missed this I. ये जो I है ना आपका second I, it was missed in maximum of the notebook. Okay, please write the correct spelling. Number 1. This is number 1. Have you done? Good. Next is number 2. Please come here. Can you see this turning point? ये एक नोज सा बना हुआ है, ये देखो टर्निंग पॉइंट ट्रायंगल सा है, ठीक है. इसके टॉप पर आपको क्या लगाना है? डॉट. पुट द डॉट. दिस इज Pampas. It is in, where it is? It is in साउथ अमेरिका. बेटा इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर आपको एक पॉइंट लेना है, एंड दिस इज नोन एज Pampas. सेवेंटी participants. Very good, beta. Very good. Please carry on. Who have map, they will do on map. Who don't have the map, they will solve it on the book, page number 61. Okay, later you have to purchase the map and paste it on the notebook, right? Pampas. Come to the third number. Third number, this is Africa. Everybody knows. इसका जो आपको ये लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके सेंटर में यू कैन पुट वन डॉट, डॉट. तो दिस इज वेल्ड. बेटा मेन पर्पस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि विच ग्रासलैंड इज इन विच कॉन्टिनेंट. सपोज इन एग्जाम इफ आई आस्क्ड वेल्ड, ओके, और आपको यही ना पता हो कि वेल्ड किस कॉन्टिनेंट में है, then it will be wrong. So you must know the continent and name of the grassland. Clear? So number 3 is world. It is so simple. आपको बस ये लोअर पार्ट देखना है और इसके सेंटर में आपको ये पुट कर देना है. Okay? Now come to the steppies. बेटा आपको ये दिखाई दे रही है वाटर बॉडी, ठीक है, उसके साथ दाक्षी लुक एट द स्क्रीन. आई एम वॉचिंग यू. लुक एट द स्क्रीन. दिस बॉडी, अदरवाइज स्टेपीज यहां से स्टार्ट होकर ये बिग एरिया सारा स्टेपीज के अंडर है,
बट आपको प्रॉपरली अगर फिल करना है तो आप ये जो स्मॉल वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, आप इसके साथ यू पुट 1 डॉट, दीज आर स्टेपीज। ये फुल एरिया एशिया का और यूरेशिया का थोड़ा पार्ट किसके अंडर आता है, मंगोलिया दिस साइड है बेटा, और ये सारा एरिया क्या है, अदरवाइज ये स्टेपीज है। बट हमने क्या दिखाना है, सिर्फ एक डॉट के थ्रू दिखाना है कि स्टेपीज कहां पर है। ओके, नेक्स्ट डाउन्स। डाउन्स का मतलब डाउन से ही देख लो नीचे, है ना। ऑस्ट्रेलिया का जो लास्ट पोर्शन है, बिल्कुल इसके डाउन साइड पर आपको क्या मिलेंगी, डाउन्स ग्रासलैंड्स। फिल दिस प्रॉपरली बेटा। यस, वेरी गुड, यू कैन डू। It is so easy. Beta, listen. In PT1, map will be asked. Okay? अगर आपके माइंड में हो ना कि only Google form will come, no. Map, long question, short question will be asked in PT1. Google form will also come, but this will also come. दोनों मैप को मिक्स करके we can ask. Like if I ask you in exam Arctic, ठीक है, then it is here Arctic question. If I ask you world, then you will fill world here. If I ask you Asia, then you will fill here Asia. If I ask you South America, you will fill here. If I ask you prairies, you will fill here. Mean both maps combine होकर आपको एग्जाम में आएंगी. Don't think so, ma'am will not ask. Okay? On the day of exam, बेटा आपको मैप को अपनी शीट के ऊपर पेस्ट करके रखना, राइट? नेक्स्ट इज one student has written, excuse me ma'am, the tuck shop is opened or not? Beta, now tuck shop is not in school, so I don't know. Okay, so I don't know whether it is outside, so it is not in my knowledge. You can take from anywhere, right? Otherwise मैंने आपको बेस्ट ऑप्शन बताई है, आपकी बुक के ऊपर है, you do the practice. Okay, whenever shops will be open, you purchase it and share, right? So I am going to revise it again. Prairies, ये जो water bodies है, इनके in between यहाँ पर है. पेम्पास, ये आपको जो ट्रायंगल्स है इसके ऊपर है बच्चा. एंड नेक्स्ट इज वेल्ड. वेल्ड इज द डाउन पार्ट ऑफ अफ्रीका, इट इज इन द सेंटर ऑफ दिस पार्ट. स्टेपीज आपको स्मॉल वाटर बॉडीज है, उसके साथ में है डाउन, ऑस्ट्रेलिया का डाउन पार्ट है. इज दिस क्लियर? आई थिंक सो ऑल हैव डन. ओके बेटा, आफ्टर दिस Okay, please don't unmute yourself. If it is not there, I will share this map today in your through your WhatsApp also. Okay, beta. Now after this, we have to open lesson number 15. Now open your book on the chapter number 15, Great Indians. Okay, hurry up. Open this, Great Indians. Ma'am. Yes, bacha. Ma'am. Bacha, open this chapter, Great Indians. We will read about many great personalities under this chapter. So, Krishan, you will read with me, beta. Krishan. Yes. Yes, ma'am. Krisha, be louder. Start Yes, from your APJ. Excuse me, ma'am. Yes, beta. APJ. Wait, Krishan, wait. Not visible. Beta, in between, you will not disturb. If you want to ask anything, you can mention in chat box. Otherwise, last 5 minutes, we will discuss. Okay. So this is a new chapter.
Listen it carefully. This is so interesting. Okay, Krishan, and this is the last chapter of PT1. Yes, Krishan, start beta. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam, the missile man of India. Yes. APJ Abdul Kalam is an Indian scientist and administrator who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. Yes, beta. Everybody knows Dr. APJ Abdul Kalam. He is known as Missile Man. अभी आपको पता चलेगा कि उनको हम मिसाइल मैन क्यों कहते हैं। सबसे पहले बेटा, ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट। सबको पता है कि वो साउथ इंडिया में बोर्न हुए थे। रामेश्वरम जब हम जाते हैं तो वहां पर इनका घर भी है। इवन तो जब हम रामेश्वरम को विजिट करते हैं ना, जो इनका नेटिव प्लेस है जहां पर ये रहते थे बचपन में, तो वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका। ठीक है, लोग इनके घर को देखने जाते हैं जब साउथ इंडिया में हम विजिट करते हैं। He served India as a administrator. एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जैसे हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रिंसिपल मैम। ठीक है, आपके जूनियर विंग को मैं देखती हूँ, हाँ मैं एडमिनिस्ट्रेट करती हूँ, बट मुझे मैम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। और ऐसे ही जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। One is disturbing me too much. Please, beta, if you are not listening, leave the class and enjoy. Okay? Don't disturb others. Who don't want to sit in the class, enjoy, beta. Leave the class. ठीक है? बुक आपके पास है, आप खुद रीड कर लेना. No problem. But let others study. बेटा, वो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और उनका टेन्योर कब स्टार्ट हुआ? 2002 से लेकर 2007 तक वो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। राइट, नेक्स्ट। यस बेटा, प्रशांत। Specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. यस बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, एरोनॉटिकल में एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट आती है। जो क्राफ्ट एयरक्राफ्ट होती है और जो स्पेस में जाती है वो इस इंजीनियरिंग के अंडर आती है। जब आप +1 +2 में होंगे ना, तो बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करें, बट टू गेट द एडमिशन इट इज सो टफ। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। राइट बेटा, फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। स्पेशली जो उनका स्पेसिफिक जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, स्पेशलाइज्ड थे वो इस चीज में। ओके, नेक्स्ट कृषान। हाँ जी बेटा। Ma'am, I have a doubt. यस मैम, ये एपीजे अब्दुल कलाम के मैम आगे मैम एपीजे क्यों लगता है? उनका नेम है बेटा। आई विल सेंड यू, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स अ लॉन्ग नेम। उसको शॉर्ट करने के लिए दे इनका नेम है। जैसे अनु शर्मा को मैं AS शॉर्ट फॉर्म लिख दूं ना, I will share today in your WhatsApp group. Okay, full form of APJ. Yes. Okay, मैम। उनके नेम को शॉर्ट में लिया हुआ है। राइट, जैसे आज क्वेश्चन क्या था? IPS, अदरवाइज वो क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विसेज होता है ना, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है IPS। राइट, यस। Ma'am, your screen is not visible properly. I'm unable to hear you, beta. Krishan, carry on from here. He made significant. Ma'am, he made significant contribution to develop India's first indigenous satellite launch vehicle Beta, SLV-2. wait beta, Krishan wait. He made significant contribution, जिसको याद किया जाता है, बहुत ज्यादा contribution करना। To develop the India first indigenous क्या होती है? स्वदेशी
अपने देश में तैयार की गई, ठीक है। इससे पहले हमारे उसमें कंट्री में सैटेलाइट्स वगैरह इतना वो नहीं था, तो ये फर्स्ट थी, उन्होंने लॉन्च की थी। SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बेटा जब किसी सैटेलाइट को हमने ऊपर भेजना है ना, ऐसा थोड़ा कि वो सैटेलाइट का बॉक्स को हम कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको भेजने के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SLV, सैटेलाइट लाइट जगा दे। उसके ऊपर सैटेलाइट होती है, वो जब ऊपर चला जाता है ये तो वो वाली लाइट वापस मना की है। सैटेलाइट को वहां पर छोड़ आता है, ओके। और जो व्हीकल होता है अमेरिका का, नासा आपको पता है अमेरिका में है, उनका व्हीकल वापस आ जाते हैं, बट इंडिया का आज तक वो व्हीकल वापस नहीं आया, वो वहीं पर कहीं कहीं मतलब स्लोली ग्रेजुअली वो वहीं पर खत्म हो जाता है, टूट जाता है छोटे 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 करके ऐसे, ठीक है। तो सैटेलाइट वही रहती है, बट नासा का जो सैटेलाइट SLV है वो वापिस आता है, मतलब नासा इतना हाईटेक है, ओके। And made India an exclusive member of Space Club, जो स्पेस क्लब का हमारा एक मेंबर बना, मतलब उसका ये मेंबर बन गए थे जब उन्होंने इसको SLV-3 सैटेलाइट को ऊपर छोड़कर आए हैं। रशिया भी बहुत आगे है, आपको पता है, नासा भी आ गया, रशिया भी आ गया, तो इंडिया ने भी अपना अपने कंट्री में, यस बेटा। मैम रशिया को रूस भी कहते हैं। हाँ जी, पहले कहते थे। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो हमारे यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी थे वो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, तो मैम जो हमारे अभी प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद, वो कौन कितने होंगे, जैसे वो 11th थे तो ये कितने होंगे हमारे? बेटा आप लिस्ट चेक करो, यू चेक एंड टेल, ओके this is मैम, your work today, ओके मैम, okay, you check and tell tomorrow in the class, right? I know the numbering, I know how many president and prime ministers are in India number, I know, but this is your work and you have to tell tomorrow, okay, full class में आप बताऊंगी, try to search it. Very good question, very good, I appreciate you beta, okay. And made India an exclusive member of Space Club. Awards and honor. बेटा अब बात आती है कि उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, किस चीज के लिए उनको इतने अवार्ड मिले। सबसे पहले है पद्म भूषण। बेटा पद्म भूषण जो होता है ना, ये थर्ड, जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऐसे जो पद्म भूषण अवार्ड है ये थर्ड नंबर पर आता है। सिविलियन अवार्ड, सिविलियन होते हैं हम जैसे जो फिलोसफर, डॉक्टर्स बहुत अच्छे आगे बढ़ जाते हैं, उनको ये मिलता है, हमें और आपको तो नहीं भी मिल सकता, अगर हम कंट्री के लिए कुछ करेंगे तब हमें भी मिल सकता है, ओके। तो पद्म भूषण जो है वो है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि उनको 1981 में मिला। सेकेंड है बेटा, कम हियर, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो होता है वो है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, इट इज मिस प्रिंटिंग हियर, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण इन 1990। सबसे पहले उनको 1981 में पद्म भूषण, और फिर उनको क्या मिला बच्चे, पद्म विभूषण 1990 में मिला फॉर हिज वर्क विद इसरो। अब ध्यान से सुनो, इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च, ओके। वेट, आशदीप यू आर ऑन माई स्क्रीन, ठीक है, आई एम वॉचिंग यू बेटा, द फुल चैप्टर, आपने बिल्कुल कुछ नहीं सुना, क्या यूज है उस चीज का बेटा?
इसरो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें इन्होंने पार्ट लिया था। और DRDO होता है डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आर्मी वगैरह में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेस्टिजियस, सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस भारत रत्न, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड, बहुत कम लोगों को मिलता है भारत रत्न, ठीक है। 1997 में फॉर द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ आवर कंट्री। पहले हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी थी ना, हमारी आर्मी के पास है ना, उनके पास थोड़ी पुराने टाइप की थी, तो उनमें ये चेंजेस लेकर आए इसरो और DRDO में। DRDO क्या होती है, डिफेंस के लिए जो यूज होती है, उसमें इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के साथ उनको मॉडर्नाइजेशन किया, ठीक है, मॉडर्न बना दिया उनकी जो टेक्नोलॉजी थी, तो इस वजह से उनको भारत रत्न मिला 1997 में, राइट। नेक्स्ट है he is known as a missile man of India. He was responsible for the development of Agni and Prithvi missile. अब क्वेश्चन आता है आपके पास, सबसे पहला टॉपिक था, look at here, APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? बिकॉज उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसको डेवलप करने के लिए। मिसाइल्स पता है क्या होती है? वैसे मिसाइल्स को यूज नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री के लिए, बट कहते हैं कि जब वॉर होती है ना, तो मिसाइल का यूज किया जाता है ना, सेफ एंड वो अपने आर्म्ड में रखते हैं, है ना। ही डिजाइन द स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इन इंडिया। इट इज बिकॉज बेटा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम क्या होता है, ये फिर DRDO के अंडर आता है। उन्होंने हमारी जो आर्मी है उनके लिए ये सिस्टम किया। इट इज बिकॉज ऑफ हिम दैट टुडे इंडिया इज सेल्फ रिलायंट इन द मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड द डिफेंस प्रोडक्शन। सेल्फ रिलायंट क्या होता है? अपने आप, खुद में पावर, अपनी शक्ति, ठीक है। तो मिलिट्री जो है उनके पास एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। डिफेंस प्रोडक्शन क्या होती है बेटा? हमारी रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा जो होती है वो किसके थ्रू होती है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। और इसमें चेंजेस कौन लेकर आया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राइट। Beside being the distinguished, distinguished का मतलब होता है very successful scientist. Distinguished मतलब very successful scientist. He was a Tamil poet. अब देखो वो एक पोइट भी थे, ठीक है। तभी हम कहते हैं ना बच्चों में सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। Do you know, जब वो आपकी एज में थे ना, तो वो न्यूज़पेपर सेल करते थे। वो बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। मीन उनको इतनी छोटी सी एज में भी काम करना पड़ा टू अर्न द मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली, राइट। और साइंटिस्ट तो थे, इसके साथ क्या थे? वो तमिल पोइट भी थे। तमिल लैंग्वेज में पोइम्स लिखते थे। पोइट होता है जो पोइम लिखता है, पोइट। इंजॉयड रीडिंग, रीडिंग करते थे। तभी कहते हैं रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। जितनी आप बुक को रीड, बेटा लेसन की बैक एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है? लेसन की रीडिंग। जितनी बार आप रीडिंग करोगे यू विल गेट न्यू थिंग्स, न्यू मीनिंग्स। दिस वे यू कैन डेवलप अ गुड वोकेबुलरी ऑल्सो। आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस का पता चलता है, ठीक है। enjoyed reading and enjoyed classic music, मतलब ये उनकी हॉबीज में भी था, राइट। I think so. Dr. APJ Kalam is clear to all. So I'm going to wait.